This is Komal Mavi. I have secured an All India rank 314 in UPSC Civil Services Examination 2025. This was my second attempt. In my first attempt, I had secured an All India rank 661 in UPSC CSE 2024. So I have taken 2 attempts at this exam, and fortunately I have been able to clear all the 3 stages in both my attempts. First of all, I would like to thank UPSC Time for giving me this platform so that I can share my strategy with you people and help the aspirants in whatever way possible. So I have been asked to keep this session bilingual, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में will continue the session. First and foremost, I would like to say one thing कि when I started my preparation, तो मुझे लगता था कि I would only listen to single digit और double digit rankers, और क्योंकि 3 digit रैंकर्स का क्या ही अलग होगा स्ट्रैटेजी, दैट वुड बी सिमिलर टू दैट. बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है. इट इज़ क्यूरेटेड एज पर आवर ओन बैकग्राउंड. इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसे टॉपर्स को सुनिए जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला है, आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए. फिर आप ऐसे टॉप रैंकर्स देखिए जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद एक टॉप रैंक सिक्योर करी है. तो आपको वहाँ से दोनों पर्सपेक्टिव मिलेंगे इस एग्ज़ाम को लेके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं निकलता है उसके लिए क्या मिस्टेक्स टॉपर्स करते हैं. तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैटेजी जब आप देख लेंगे तो आप अपने लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे. First of all, I would like to give a brief background about myself. I have done my bachelor's in chemistry from Hansraj College, Delhi University. Post that, I have done master's in chemistry from IIT Delhi. I also pursued PhD for around 6 months, and then I resigned from PhD and started preparation for this exam in 2023. So as you can understand, मेरा शुरू से कोई गोल नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है. मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में जब मैंने अपने बैचमेट्स को प्रिपेयर करते हुए देखा, तो मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बनने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट सिविल सर्विसेज. तो आई स्टार्टेड टू वॉच अ लॉट ऑफ टॉपर्स टॉक, एंड वहाँ से मुझे काफ़ी आइडिया मिला इस एग्ज़ाम के बारे में. बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई शुड गो फॉर PhD और आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज. तो इसलिए आई एनरोल्ड इन PhD फॉर सम टाइम. And when I became sure about the exam, then I resigned in 2023 and I started preparing. So मेरी जो preparation थी वो around 14 to 16 months की रही है before my first attempt, और फिर मैंने 2024 में अपना attempt दिया and I got rank 661. So I would also like to extend my gratitude towards my parents, my teachers and all my friends who have had immense faith in me and they have motivated me throughout my journey. They have had this belief कि मैं तो निकाल ही लूँगी. Even when I became unsure about myself, they always had that confidence in me. तो ऐसा आपके पास एक ग्रुप होना, आपके पास एक ऐसी फैमिली होना, ऐसे टीचर्स होना, मेंटर्स होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को इस जर्नी में सस्टेन कर सकें. So on that note, let's begin the session where I'll be sharing the strategy part. So first we'll be going through a general timeline and each stage specific preparation, and post that I can take your doubts from the comment section. So first is regarding the prelims strategy. So for prelims, I had kept my sources very limited. मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत सारी टॉपर स्टॉक्स देखी थी. टॉपर स्टॉक्स को देखने के बाद आई हैड फाउंड कि कुछ कॉमन सोर्सेज हैं विच आर अक्रॉस, दे आर बीइंग फॉलोड अक्रॉस द टॉपर्स. तो वो सोर्सेज, आई नोटेड द सोर्सेज डाउन एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. सो ब्रीफली आई विल गिव यू माई सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स. For polity, I refer to Lakshmikant. Along with that, I also read NCERT, Class 11, Indian Constitution at Work and Political Theory. For economy, I read Vivek Singh Sir's book on Indian economy, and I read the summaries of budget and economic survey. This is for prelims part. Then for modern history, Spectrum, I did not read any NCERT, only Spectrum. Then for geography, I read only the NCERTs, class 11 and 12. I did not read 6 to 12 की NCERTs because as I told you, मेरे पास बहुत कम time था. I had only 1 year to prepare, so I wanted to keep my book list as short as possible. इसलिए मैंने 6 to 12 की NCERTs को रेफर नहीं किया था. I only read 11th and 12th NCERTs for geography. इसके अलावा GC लियोंग भी होती है एक geography के लिए. I did not read that book again because I did not have that much time. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं. इसके अलावा जो हमारे एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं विच एक्चुअली हेल्प अस टू बूस्ट आर स्कोर इन प्रीलिम्स, दे आर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर. दिस इज कॉल्ड AMAC. सो इसके लिए आई रेफर टू फाइन आर्ट्स NCERT क्लास 11th, एंड एंशिएंट मिडीवल के लिए आई रेड दी NCERTs, ओल्ड NCERTs एज वेल एज तमिलनाडु की बुक्स.
यू कैन रीड ईदर ऑफ दीज. आई हैड अ लैक ऑफ गाइडेंस, तो इसलिए मैंने दोनों पढ़ ली थी, बट आई डिड नॉट रिवाइज बोथ ऑफ देम प्रॉपरली. इसके अलावा ल्यूसेंट भी आप रेफर कर सकते हैं एंशिएंट मिडीवल के लिए, वहाँ से क्वेश्चन अब आने लगे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स. इसके अलावा आईआर हो गया, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, इनके लिए मैंने सारथी आईएएस का कोर्स ज्वाइन किया था प्रीलिम्स का, जिसमें साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट शिविन सर पढ़ाते हैं, आईआर वरुण सर ने पढ़ाया था फॉर प्रीलिम्स. सो दिस कवर्स दी बुक लिस्ट फॉर जीएस पेपर 1 इन प्रीलिम्स. CSAT के लिए भी आई हैड ज्वाइंड अ कोर्स, ऑल्दो आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और मेरा मैथ्स अच्छा खासा था. आई हैड स्कोर्ड डिसेंटली वेल इन मैथ्स इन क्लास 12 ऑल्सो, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई अटेंडेड क्लासेस एंड आई वेंट फॉर सारथी IAS. आयुष गुप्ता सर पढ़ाते थे पहले, नाउ ही हैज़ मूव्ड अवे टू सम अदर इंस्टीट्यूट. तो उनके मैंने क्लासेस लगाए एंड आई मेड नोट्स आउट ऑफ दोज क्लासेस, और मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में वही नोट्स पढ़ के CSAT अपना पेपर दिया है. So this is about the sources, but apart from that I would like to talk about prelims की strategy, because just a minute. Yes, so the strategy for prelims, first of all the preparation strategy, then the exam hall strategy, practice, mock test, etc. I will be addressing those things now. So regarding preparation for prelims, first of all आपको एक बहुत बेसिक तरीके से बुक्स को कवर करना है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, बट अपना एक बेस बनाने के लिए. जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है, उसके बाद यू कैन, आई एम सॉरी, आई विल एड्रेस द डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट. ऑल राइट, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट फॉर प्रीलिम्स. तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने बेसिक बुक्स या कोई भी नोट्स आपने कोचिंग के डिसाइड करे हैं कि आप ये पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, उसको आप एक बार पढ़िए, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स और मेंस, बट जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम. उसके बाद जब आप फर्दर रीडिंग करते जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आती जाएगी. तो उसके बाद आप उसको प्रीलिम्स स्पेसिफिक मोड में स्विच कर सकते हैं लेटर ऑन, बट इनिशियली आप उसको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़िए, जस्ट टू बिल्ड अ बेस. जब आपने बेस अच्छे से बिल्ड कर लिया है, तो अब आपने बहुत टॉपर टॉक्स में सुना होगा दैट देयर इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. सो हाउ डू ऑल दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. फर्स्ट रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले अपना बेस बनाते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, हम वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं कंटेंट को. बट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग हमें क्योंकि ओवरव्यू मिल चुका है, तो अब हम वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करेंगे. हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सेकंड रीडिंग से अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे, थर्ड रीडिंग में उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं. इस तरीके से जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो विद फर्दर रीडिंग्स वो डिक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ताकि प्रीलिम्स की जब प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करेंगे अराउंड 3 to 4 months बिफोर प्रीलिम्स, उस टाइम पे आपके पास कंटेंट बहुत लिमिटेड होगा पढ़ने के लिए. सो दिस इज़ अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू रीड फॉर प्रीलिम्स. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कितने मॉक्स इनफ होते हैं, PYQ उसको कैसे एनालाइज करते हैं फॉर प्रीलिम्स. तो देखिए, कोचिंग ज्वाइन करना नहीं करना दैट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस. इट वेरीज फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप एक नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, देन डेफिनेटली आपको कोई गाइडेंस ले लेनी चाहिए. आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग लें. वाई आई से दिस इज़ कि ऑफलाइन में आपका एक तो आने जाने का टाइम वेस्ट होता है, सेकेंडली टीचर्स जिस भी स्पीड पे बोल रहे हैं आपको उसी स्पीड पे उन्हें सुनना पड़ेगा. सो उससे आपका टाइम कंज्यूम होता है. अगर आप ऑनलाइन स्विच करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. तो इससे आप अपने टाइम को जो एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इससे मैक्सिमाइज हो जाएगी. सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन. आपको ORN आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जिस भी एरिया से प्रिपेयर कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ रिमोट एरिया या कोई भी पार्ट है कंट्री का, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑनलाइन मीडियम से आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं. सो रिगार्डिंग नंबर ऑफ मॉक्स, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. अगर आपको एक स्टैंडर्ड नंबर चाहिए तो आई थिंक मिनिमम आप 2 सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, और आप 5 to 10 FLTs इतना आपको करना चाहिए. सो मोर देन द नंबर ऑफ मॉक्स, व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि आप उन मॉक्स को रिवाइज कैसे कर रहे हैं, आप उन मॉक्स को एनालाइज कैसे कर रहे हैं. अगर आप बिना एनालिसिस के मॉक्स दिए जा रहे हैं और आप अपनी इम्प्रूवमेंट पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सेम गलतियों को फर्दर मॉक्स में रिपीट कर रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है. चाहे आप 100 मॉक्स लगा लीजिए, चाहे आप 200 मॉक्स लगा लीजिए. सो व्हाट इज़ द मेजर फोकस एरिया? द मेजर फोकस एरिया शुड बी कि आपने जो भी मॉक दिया है आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एनालिसिस ऑफ द मॉक? एनालिसिस ऑफ द मॉक मीन्स आप पेपर को लेके बैठे, आप चेक कीजिए आपके कौन से आंसर्स गलत हुए हैं, आपके कौन से आंसर्स सही हुए हैं.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपने गलत आंसर्स चेक नहीं कर रहे हैं, आप अपने सही आंसर्स भी देख रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम तुक्का लगाते हैं और वो तुक्का सही हो जाता है, लेकिन हमने जो सोच के वो तुक्का लगाया है दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमारा रीजनिंग जो है वो गलत था और हमने उस रीजनिंग से भी सही आंसर निकाल लिया। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैंने जो लॉजिक लगा के आंसर निकाला है क्या वो सही था या गलत था, ताकि आप एग्जाम में उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। सो दिस इज़ हाउ मॉक एनालिसिस इज डन। मॉक एनालिसिस में आप सब्जेक्ट वाइज फोकस कर सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि इस सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ, तो मुझे फर्दर मॉक में इस पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मॉक से आपको ये भी पता चलेगा कि आप लैग कहाँ करते हैं, आपके रिविजन में इशू है, या आप एग्जाम के टाइम पे बहुत एंशियस हो जाते हैं, या आप प्रॉपरली अटेंटिव नहीं होते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक के थ्रू एनालाइज करनी है। बोथ अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम आपको एनालाइज करना है थ्रू मॉक। तो this is about mock analysis. Now, when do we start prelims preparation? Ideally, I think 3 to 4 months before prelims examination, that is a good time to start. There are certain people जो multiple attempters होते हैं, तो because of that and they are not able to clear prelims, तो उसकी वजह से they have a lot of fear और वो 6 महीने पहले भी prelims की preparation start कर देते हैं। माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि आप इतनी जल्दी स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज इस एग्ज़ाम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे पीक कर रहे हैं। अगर आपने अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस एग्जाम से 2 महीने पहले दे दी है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अगर डिप हो रही है, देन दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू। इसलिए आपको एक ऑप्टिमम पीरियड डिसाइड करना है, जिसमें से 3 to 4 months बिफोर प्रीलिम्स आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और ताकि आपकी जो पीक परफॉर्मेंस है वो प्रीलिम्स वाले दिन निकले, ना कि उससे पहले या उसके बाद में। सो दिस इज़ एन आइडियल टाइमलाइन। ऑफ कोर्स आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। सो रिगार्डिंग, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रीलिम्स। हमने mock test and exam day strategy etc, we have covered it all. So apart from that, I would like to give you a personal tip. Prelims क्योंकि एक single day का exam होता है, it's very difficult to judge your knowledge on that day itself. So it's more a game of mindset, it's more a game of confidence than the game of your knowledge. तो इसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी कामनेस पे, अपने सेल्फ बिलीफ पे बहुत ज़्यादा काम करना है। और ट्रस्ट मी, जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं जो कॉन्फिडेंट है, जो अपने आप पे बिलीफ रखती है, जो घबराती नहीं है स्ट्रेस के अंदर, तो वो आपको थ्रू आउट द एग्जाम एंड इन लाइफ इन जनरल वो आपको हेल्प करता है। तो वो नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पे वो आपको हेल्प करेगा। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, प्लीज़ अकेडमिक आस्पेक्ट के अलावा आप अपने नॉन अकेडमिक आस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी पे भी काम कीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, अगर आपका प्रीलिम्स अब तक नहीं निकला है, यू हैव स्टडीड अ लॉट, सो आप एक बार इस आस्पेक्ट पे काम करके देखिए, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, I think we can now switch to mains related strategy. One more thing I skipped is current affairs कैसे करना है prelims के लिए। देखिए, करंट अफेयर्स जो है इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, मतलब हर सब्जेक्ट का इतना करंट हो जाता है कि आप कहाँ तक उसको चेज करेंगे। सो फॉर करंट अफेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि आप एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, आपको जो भी पसंद आए। मैंने पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, बिकॉज इट इज़ मोर ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत हाई फाई नहीं होती है। द हिंदू थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, मुझे डिफिकल्टी होती थी टू अंडरस्टैंड द हिंदू, so that's why I switched to Indian Express. But when should we start reading the newspaper? I would suggest कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जंप ना करें इनटू रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिकॉज आपके एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे इनिशियली, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कैसे फिल्टर करना है, व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, व्हाट इज़ नॉट रेलेवेंट, आपको कितना डेप्थ में जाना है। तो इसलिए इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, आप जिन भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आप वो अपना कंटिन्यू करिए। इनिशियल 2 और 3 मंथ्स के लिए आप कोई भी डेली न्यूज़ एनालिसिस दे सकते हैं यूट्यूब से, किसी भी कोचिंग की आप देखिए। तो उससे जब आप रेगुलरली उसको देखेंगे तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक तो कि हमारा करंट कवर हो रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके अलावा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि आपको कैसे करंट को कवर करना है, आपको कैसे न्यूज़ को फिल्टर करना है। सो माई फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आप पहले न्यूज़ एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग खुद से स्टार्ट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैगजीन्स आप कवर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, उससे आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़े एंसिलरी रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे मंथली मैगजीन हो सकती है, या फिर PT 365 एंड में कंपाइलेशंस जो आती हैं, उनमें से आपको जो सूटेबल लगता है आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी हमें कवर करना होता है फॉर प्रीलिम्स, तो वो भी आप किसी एक कोचिंग का समरी बजट और इकोनॉमिक सर्वे की आप उठा सकते हैं और वहाँ से कवर कर सकते हैं। Just a minute. Yes, sorry, there was an interruption.
I was talking about the current affairs part. So I think this is pretty much about current affairs for prelims. मेंस के लिए आई वुड से कि जो भी आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, आप उसको इतना अच्छे से कवर कीजिए कि आप उसको मेंस में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे कोड करने से बहुत हेल्प होती है थ्रू आउट द जीएस पेपर्स. तो उसको आप सीरियसली लीजिए. दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपको ग्राफ्स मिलते हैं, आपको डेटा मिलता है, आपको एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर. तो वो आप कवर करते रहिए, आपको पेपर में उससे हेल्प मिलेगी. सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए दिस मच इज़ एनफ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेंस. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रॉड टाइमलाइन कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एक टाइमलाइन कैसा दिखना चाहिए. लेट्स सपोज आपके पास अराउंड 14-16 मंथ्स हैं. तो वाई आई से 14-16 मंथ्स कि आप इसमें 2 मंथ का बफर लेके चलिए. जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप ये मान के चलिए आपको 1 साल लगेगा प्रिपेयर करने के लिए. इसके अलावा आप 2-3 मंथ्स का बफर लीजिए, क्योंकि वो टाइम आपका वेस्ट होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं. तो लेट्स सपोज आपने 15 मंथ्स या 16 मंथ्स का आपने टाइम लिया. उसमें आपको इनिशियली जो 4 to 5 मंथ्स हैं उसमें आप अपना बेस बिल्ड कीजिए. एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर, आप पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आप बेसिक इनकी कवर कीजिए. इनको कवर करने के 2 तरीके हैं. या तो आप पर डे एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं या फिर आप पर डे 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स यू बेटर. आई वुड से आप 2 सब्जेक्ट लीजिए एवरी डे. वाई आई से दिस इज, जब आप एक ही सब्जेक्ट एवरी डे इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सो व्हाट हैपेंस इज वी टेंड टू गेट एग्जॉस्टेड और फिर हम गिव अप कर देते हैं. देन वी टेंड टू वेस्ट आवर टाइम अलॉट. सो इट्स बेटर टू हैव सम डाइवर्सिटी इन योर डे. यू कैन कीप 2 सब्जेक्ट्स पर डे so that you can have a balance of both. So for initial 4 to 5 months you can cover these subjects, basic subjects. After that you can start your optional and your mains preparation. Ideally you should be mains ready by December. If you are not, then you can extend it up to January end, but not later than that. आप उस पर कवर कीजिए. नॉट नेसेसरली टू कवर 100% ऑफ मेंस बिफोर प्रीलिम्स, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी आइडियल थिंग टू से कि आपका मेंस प्रीलिम से पहले रेडी हो जाना चाहिए, बट कंप्लीटली नहीं हो पाता है. एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, इट इज़ वेरी कॉमन. किसी का नहीं हो पाता है. सो आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 80 to 90% आप मेंस बिफोर प्रीलिम्स कवर कर लीजिए. इफ़ नॉट 80 देन आपको 70% तो किसी भी हालत में कवर करना है, क्योंकि जो टाइम है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. तो उस टाइम पे ऑलरेडी एंग्जाइटी बहुत होती है, तो उसके लिए आपको नहीं छोड़ना है उसे. देन आफ्टर जनवरी यू कैन स्विच टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स, एंड देन यू कैन गो फॉर द एग्जाम. सो दिस इज़ अ ब्रॉड टाइमलाइन. नाउ विल स्टार्ट विद मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन. हम कैसे करेंगे और हम ऑप्शनल कैसे डिसाइड करेंगे, ऑप्शनल को कितना टाइम देंगे. सो लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग ऑप्शनल, मैंने अपना ऑप्शनल केमिस्ट्री चूज़ किया. एज आई टोल्ड यू ऑल कि मेरा जो बैकग्राउंड है दैट हैज़ बीन इन केमिस्ट्री. सो आई थॉट वाई नॉट, अगर मैंने 5 साल केमिस्ट्री को दिए हैं सो इट्स बेटर कि मैं उसको चूज़ करूँ रादर देन अ सब्जेक्ट विच इज़ कम्प्लीटली अननोन टू मी. क्योंकि ऑनेस्टली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है यूपीएससी में, एंड इट्स बेटर कि मैंने जो करा हुआ है मैं उसी पे थोड़ा और वर्क करूँ और उसी को मैं अपना ऑप्शनल चूज़ करूँ. सो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड माई ऑप्शनल. बट दिस इज़ नॉट दी सोल क्राइटेरिया. आप किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे अपना ऑप्शनल. सो देर आर अ फ्यू फैक्टर्स. फर्स्ट वुड बी कि गाइडेंस कितनी उस ऑप्शनल में अवेलेबल है. आपको वो देखना पड़ेगा. अगर आप बहुत ही ऐसा यूनिक सा ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं जिसके लिए अवेलेबल गाइडेंस नहीं है, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे उसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गाइडेंस अवेलेबिलिटी. सेकेंड क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दी ऑप्शनल इज आप किस ऑप्शनल में कंफर्टेबल ज़्यादा हैं. इट कैन बी योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट और इट कैन बी अ सब्जेक्ट फ्रॉम द कॉमन ऑप्शनल्स, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR. इन ऑप्शनल्स में से आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. नाउ हाउ टू डिसाइड विच ऑप्शनल यू आर मोर कंफर्टेबल इन. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 3-4 ऑप्शनल्स आप थोड़ा नैरो डाउन कीजिए कि मैं इनमें से कुछ लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ. उसके बाद आप उन सब के PYQs उठाइए, उनका सिलेबस उठाइए और उसको थोड़ा रीड कीजिए. उसके बाद आप मार्केट से फ्रीली जो नोट्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के, आप वो उठाइए, आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिए. 1-2 दिन दोनों सारे ऑप्शंस आप पढ़िए, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस ऑप्शनल में ज़्यादा बन रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरेस्ट ऑप्शनल में बने, क्योंकि अगर आपने एक ऐसा ऑप्शन ले लिया है जिसको आप सज़ा की तरह सिर्फ आप कंप्लीट करने में लगे हुए हो, ट्रस्ट मी हम सब ये सोच के आते हैं कि हम 1 साल प्रिपेयर करेंगे, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे, लेकिन यू नेवर नो जर्नी कितनी लंबी हो जाए. तो प्लीज़ इंटरेस्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसी अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल डिसाइड कीजिए. एंड थर्ड क्राइटेरिया इन माई ओपिनियन वुड बी जो मार्क्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शनल में.
तो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स एनालाइज कीजिए, कितने टॉपर्स रहे हैं उस ऑप्शनल से, कितना एवरेज रहा है, हाईएस्ट कितना रहा है। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड। एक और क्राइटेरिया होता है लोगों का ऑप्शनल चूज़ करने का, वो होता है कि ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा ऑप्शनल कंप्लीट करने में। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, स्पेशली जैसे जो ऑप्शनल्स होते हैं लाइक मैथ्स। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, मतलब उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं,